السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، امن و امان میں رکھے۔ آج میں جو آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں مفتی صاحب کی زبانی، اگر آپ اس کو دل سے اور آخر تک سنیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے اور اپنی زندگی میں امید ہے کچھ تبدیلیاں لائیں گے اور بہت ساری کی زندگی اللہ اس آخری تک واقعہ سننے سے ضرور بدلے گی، ضرور تبدیل ہوگی۔ تو لیجئے ہم اس واقعے کو شروع سے سنتے ہیں۔ آج کی کہانی پوری سننا ضرور، بہت دلچسپ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کہانی یہ ہے کہ میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں بڑا خوش تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے ویسا ہی ہمسفر عطا کیا تھا، ویسی ہی بیوی عطا کیا تھا جیسے میں چاہتا تھا۔ پیاری سی، دوستانہ سی، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی اور ماڈرن بھی۔ ہم دو بھائی ہیں۔ بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی ہے، اور بابا کو گزرے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ ہی تھے، میں، میری بیوی اور میری امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا تھا۔ آفس جاتا تھا تو وہاں سے فون کرتا تھا اپنی بیوی کو، حال چال پوچھتا تھا۔ نیا نیا ہم سفر تھا، ذرا اس کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ رات کو جب آتا تو امی کو سلام کر کے میں اپنے کمرے میں ثنا کے پاس چلا جاتا تھا۔ ثنا میری بیوی کا نام ہے۔ میرے صبح شام بس ایسے ہی گزرتے تھے۔ امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے ہی کمرے میں کھایا کرتا تھا ثنا کے ساتھ۔ ایک دن امی مجھ سے کہنے لگی، اوے میرے نالائق بیٹے، اپنی ماں کا بھی ذرا حال چال پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ میں شرمندگی کے ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کہا، امی جان آپ کو تو پتا ہے آفس میں بہت سارا کام ہوتا ہے، میں تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بری نظر سے بچا۔ کہنے لگی، جا بیٹا اب جا کر سو جا، ثنا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی جان، اور میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے اس دن گھٹنے میں درد تھا شاید، وہ مجھ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا نا کہ میں تھک گیا ہوں، اس دن امی نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا تو ثنا میری پیاری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ یار مجھے آج برگر کھانے کو دل کر رہا ہے، جاؤ نا جلدی سے لے کر آؤ نا میرے لیے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، میں نے کہا میری جان 10 بج رہے ہیں۔ ثنا نے مسکرا کر کہا، تو کیا ہوا، جاؤ جا کر برگر لے کر آؤ، مجھے برگر کھانا ہے۔ میں ثنا کی محبت کے آگے مجبور تھا۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ امی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو دبا رہی تھی، شاید ان کو بہت زیادہ درد تھا، لیکن میں امی کو اگنور کرتا ہوا میں بائک اسٹارٹ کرنے لگا۔ امی نے پوچھا بھی، کہاں جا رہے ہو تم اس وقت پر میرے بیٹے؟ میں بولا، امی وہ ثنا کے سر میں بہت درد ہے نا، اس نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، میں اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگی اس سے اچھا ہوتا تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ خیر اب جب تم جا ہی رہے ہو تو میرے گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی اچھی سی دوائی لے کر آنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پر کافی رش تھا، وہاں مجھے ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ میں گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا اور میں صرف برگر لے کر گھر آ گیا۔ امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا، میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور ثنا کے کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوائی نہیں لائے؟
मैंने सर पर हाथ रखा और कहा, ओफो अम्मी, मैं तो दवाई भूल ही गया। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। अम्मी मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, तुम अभी आराम कर लो, कल ले आना। मैं कमरे में गया, जाकर सना वहां पर बर्गर खाने लगी और मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा और हम ऐसे ही सो गए। अम्मी शायद उस रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन मैं बेखबर रहा। बहरहाल ऐसे दिन गुजरने लगे, मैं अम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में कभी एक बार मैं हालचाल पूछ लेता था बस, वरना अम्मी के कमरे में मेरा कब जाना होता था। और बड़ा भाई तो कभी अम्मी से मिलने ही नहीं आता था। हालांकि बड़े भाई का घर करीब ही था, वो तो अपने बीवी बच्चों में खुश था, उसे कोई परवाह ही नहीं थी। अक्सर अम्मी मुझसे पूछा करती थी कि वकास बेटे, तेरे भाई का क्या हाल है, बेचारा पता नहीं वो किन मुसीबतों में घिरा हुआ होगा। अम्मी हमेशा अफसुर्दा लहजे में कहती थी कि कल मैंने उसे देखा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। वकास बेटे, जरा भाई का जरा हाल पूछ लिया करना, सब खैर तो है ना। अम्मी जरा तड़प कर कहने लगी और दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किलों को आसान फरमा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, अम्मी उसको तो आपकी जरा भी परवाह नहीं है, और एक आप है जो हमेशा उसी के गीत गाते रहती हो। मां मुस्कुराई, कहने लगी, हाय मेरे बच्चे, वो बड़ा सीधा साधा सा है, इसलिए उसकी फिक्र होती है। वो खुद परेशान होगा, इसलिए मिलने के लिए मेरे पास नहीं आता होगा। मैं गुस्से से बोला, वो और परेशान नहीं है, कल ही उसने अपने साले को नई बाइक दिला कर दी है, 1.5 लाख रुपए की, वो कहां से परेशान होगा। मां चुप हो गई, मैं महसूस ही नहीं कर पाया। लेकिन अम्मी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जा रही थी। बहरहाल ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उन्होंने मुझे ट्रांसफर करने का प्लान बनाया। मेरे लिए वहां नया घर भी दिया और नई गाड़ी भी दी। मैं बड़ा खुश था। मैंने आकर सना को बताया, सना तो खुशी से झूमने लगी। अम्मी जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आई और पूछने लगी, बेटा किस बात का शोर हो रहा है। मैं मुस्कुराकर बोला कि अम्मी, कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है और वो हमें गाड़ी भी देंगे दूसरे शहर में। 5 दिन के बाद हमको यहां से निकलना पड़ेगा। मां मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि अच्छा बेटा, अल्लाह सब खैर करे। अम्मी ने फिर सना की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली कि सना मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं अम्मी की तरफ देखकर बोला कि अम्मी, आप साथ नहीं हैं हमारे, अभी सिर्फ मैं और सना जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लिया जाएगा, आप तब तक बड़े भाई के पास रहना। अम्मी के चेहरे पर अचानक उदासी सी छा गई। कहने लगी, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मुझे अपने बड़े भाई के घर छोड़ा। मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता हुआ जिस्म, तड़पता हुआ दिल और बेबस लहजा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं शाम को छोड़ आऊंगा। अम्मी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। अम्मी शायद उस दिन बहुत रोई थी। शाम को मैं भाई के घर गया, अम्मी भी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था। भाई ने हमको देखकर थोड़ा आर्टिफिशियल मुस्कुराया और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा कि आओ खाना खा लो। मैंने कहा शुक्रिया। फिर भाई की तरफ देखकर मैंने कहा कि भाई, अम्मी आज से आपके पास रहेगी। भाई एकदम चुप, थोड़ी देर कुछ बोला ही नहीं। फिर अचानक बोल पड़ा, क्यों तुम थक गए हो? मैंने कहा नहीं, मैं असल में जॉब के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं, दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, कुछ महीनों के बाद मैं अम्मी को बुला लूंगा। भाई अम्मी की तरफ देखकर बोलने लगा, हां हां, अब ये बोझ मेरे गले में तू डालकर चला जा, मैं खुद बहुत तंग हूं। भाई तू अपने साथ अम्मी को ले जा, यहां मत छोड़। भाभी भी गुस्से में बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 रोटी के लिए यहां पर तंग है। मैंने भाई से कहा कि भाई आप टेंशन न ले, मैं अम्मी के लिए हर महीना खर्चा भेज दिया करूंगा। अम्मी कुर्सी पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी।
मुस्कुराकर कहने लगी कि मेरे बच्चों, क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो, मुझे ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाओ, आश्रम में छोड़कर आ जाओ। मेरी जिंदगी ही कितनी बाकी है, थोड़ा सा सफर रह गया है, मैं वहां काट लूंगी। ये कहकर अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद कहा कि तुम्हारी अम्मी को दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में? कोई टेंशन तो नहीं ली अम्मी ने तुम्हारे? मैं थोड़ा नजरें चुरा कर कहने लगा, डॉक्टर साहब, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अम्मी बाजू में बेहोश पड़ी हुई थी। मैं खड़ा हुआ था, मैं पास में ही खड़ा हुआ था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी को बोला तक नहीं जा रहा था। शायद अम्मी को पैरालिसिस यानी फालिज का भी अटैक हुआ था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी, खाना पीना तक छोड़ दिया था। हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल पर लेकर गए, लेकिन कहीं कुछ इलाज नहीं हो रहा था, कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी मेरे साथ में था, वो भी अम्मी की ये हालत देखकर तड़पने लगा था। आखिर डॉक्टर ने कहा कि अपनी अम्मी को घर ले जाए और उनकी खिदमत करें। जितनी भी जिंदगी उनकी बची है, बाकी अल्लाह मालिक है। हम अम्मी को घर ले आए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तरे मर्ग पर होते हैं। ना कुछ खाती थी, ना किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बुजुर्ग है, बड़े अल्लाह वाले हैं, जाओ अपनी परेशानी उनको बता दो, शायद वो कोई इलाज बता दे या कोई दुआ कर दे तो वो ठीक हो जाए। मैं बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग सफेद दाढ़ी रखे हुए, नूरानी चेहरा, मेरी तरफ देखकर बोले कि आओ बेटा मेरे पास बैठ जाओ। मैं परेशानी में बोला कि बाबा जी, मेरी अम्मी बीमार है, हमने उसका बहुत इलाज करवाया, कोई दवा ही असर नहीं कर रही है और बिल्कुल खामोश हो गई है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। हमने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि ये तो बहुत छोटा मसला है, मुझे एक बात बताओ, माँ को संभालता कौन है, उनका ख्याल कौन रखता है, उनकी खिदमत कौन करता है, उनको दवाई वगैरह कौन पिलाता है? मैंने आहिस्ता से कहा कि मेरी बीवी उनका ख्याल रखती है, उनको दवाई वगैरह देती है। वो बुजुर्ग सारा मसला समझ गए। कहने लगे कि जाओ जल्दी से एक खीर का डब्बा लेकर आओ। मैं हैरान हुआ, लेकिन मैं जल्दी से गया और खीर का डब्बा लेकर आया। बुजुर्ग ने उस डब्बे में एक दो फूंक मारी और एक पानी की बोतल मंगाई, उसमें भी फूंक मारी और कहने लगे कि घर जाकर पहले अम्मी के पास जाकर बैठना और उनसे कहना कि अम्मी जान आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अपने हाथों से खीर बनाकर तुमको खिला रहा हूं और ये पानी जो दम किया हुआ है, अपने भाई से कहना कि अपने हाथों से अपनी अम्मी को पिलाओ और कल आकर मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आया, अम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज दी कि अम्मी जान आंख खोलो। मैंने अम्मी के सर पर हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया, अम्मी का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोला कि अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाया है और मैं ही अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा और भाई आपको अपने हाथों से पानी पिलाएंगे और आज से हम ही तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हैरानी की बात यह थी कि आज अम्मी ने एक बार भी खाने से इनकार नहीं किया था, जैसे वो रोज इनकार करती थी। एक प्लेट पूरी खीर की अम्मी ने खा ली। जब पानी मांगा तो भाई ने आकर फौरन अम्मी के मुंह से पानी का गिलास लगाया। मैं हैरान था कि अम्मी ने सारा पानी भी पी लिया। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी और खीर खानी है? तो अम्मी ने हां में सर हिलाया। फिर मैंने दूसरी प्लेट खीर की लाई, अम्मी ने वो भी खा ली। जब अम्मी ने अच्छे से खा लिया पी लिया तो मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा।
अम्मी का हाथ हरकत करने लगा। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं बहुत रोया। दिल में सोचा कि वो बाबा तो बड़े पहुंचे हुए हैं। जिस बीमारी को डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया था, बाबा के एक दम से अम्मी खाने पीने लग गई। दूसरे दिन मिठाई का डब्बा लेकर मैं बाबा जी की खिदमत में पहुंच गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर ही समझ गए। मैंने सलाम किया और अदब से जाकर बोला कि बाबा जी, मैं आज भी खीर लाया हूं, आज आप इस पर भी दम कर दे। कल आपकी दम की हुई खीर मां ने पूरी खा ली, हमको बहुत खुशी हुई। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी? मैंने कहा, हाँ, मैंने मेरे हाथों से खिलाई थी। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली और कहने लगे कि बेटा, सच बताऊं, न मैंने उस पानी पर कुछ पढ़ा था, न मैंने उस खीर पर कुछ पढ़ा था, कुछ भी नहीं। बेटा, जब तुमने बताया ना कि अम्मी इतनी ज्यादा बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है और तुम्हारी बीवी उसकी खिदमत करती है, तभी मैं समझ गया था कि मां को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी। बेटा, मां कब पूरा संसार मांगती है? जब बेटा मुस्कुराकर मां से जब पूछता है ना कि अम्मी आप कैसी है, तो खुदा की कसम, मां कितनी भी बीमार हो, वो अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद समझती है। औलाद के मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही मां के लिए शिफा बन जाते हैं। बेटा, काश तुम पहले ही मां को अपने हाथ से दवा दे देते या खाना खिला देते तो तुम्हारी मां कभी बीमार ही नहीं पड़ती। बेटा, एक बात पूछूं, क्या तुम दो भाइयों के लिए ये मां बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े हो? बाबा का ये कहना था कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कहने लगा कि बाबा, मैं भटक गया था, मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, माएं कभी औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती है। जाओ बेटा, अब जाकर अपनी जन्नत को अपने सीने से लगा लो। बेटा, उनसे पूछो मां का मकाम जिनकी माएं कब्रों में जाकर सो गई है। मां के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा, मां को दवा की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मैं तड़प उठा। उतने में ऑफिस से मुझे फोन आया कि आप कब बाहर जा रहे हैं, यानी दूसरे शहर में। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं कहने लगा कि मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं और भाई अम्मी के साथ ही रहने लगे। 2 साल गुजर गए हैं, अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है और हम बहुत खुश हैं और हमने नया घर भी बना लिया है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अपने माँ बाप की कद्र करें। वो कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत, एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई भी अपने माँ बाप से या उनके माँ बाप उनसे नाराज है तो अल्लाह के लिए जाएं और उन्हें राजी कर ले। खुदा की कसम, मां को सीने से लगाकर तो देखो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए ये माँ बाप की मोहब्बत। बातों से बहुत कुछ सीखने को मिले होगा और इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब के वाक़यात से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। माँ बाप के बारे में जो हमारे नज़रिए हैं उस पर हम गौर फिक्र करेंगे और माँ बाप की खिदमत को अव्वल दर्जा पर रखेंगे। माँ बाप के साथ रहना गवारा करेंगे। माँ बाप की खिदमत करके ही हमें जन्नत मिल सकती है। इस कदर मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। दुआओं में याद रखें और माँ बाप की खूब खिदमत करें। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।